अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कही अनकही बातें। ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया के कोलैबोरेशन से। इस प्रोग्राम का मेन पर्पस है ऐसे मुद्दों पर बात करना जो महिलाओं से और यंग लड़कियों से जुड़ा हो या जेंडर से जुड़ा हो, जिसकी वजह से समाज में, हमारे कम्युनिटी में और देश में जेंडर भेदभाव होते हैं या उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, और उसके बाद महिलाओं और लड़कियों के पोजीशन को कैसे मजबूत कर सकते हैं विदाउट एनी जेंडर बायस। मैं हूं शालिनी और मैं क्रिया के साथ काम करती हूं। क्रिया जेंडर और पितृसत्ता के मुद्दे पर महिलाओं और लड़कियों के साथ जुड़कर उनकी क्षमता का निर्माण करती है और समुदाय में भी उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। तो दोस्तों, आज हम एक और नया और वेरी इंफॉर्मेटिव एपिसोड आपके साथ लेकर आए हैं। उस एपिसोड में एक्चुअली हम बात करेंगे बहुत ही अहम मुद्दे की, क्योंकि हम जो लोग भी कैंपस से जुड़े हैं हम सब पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आज हम बात करेंगे इंटरनल कमेटी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इंटरनल कमेटी हर कंपनी में, संस्था में, कैंपस में, हर ऑफिस में होनी बहुत जरूरी है। ये कानूनी रूप से बाध्य है। इंटरनल कमेटी स्टूडेंट्स और स्टाफ या किसी भी संस्था के, ऑर्गेनाइजेशन के टीम मेंबर्स के साथ होने वाले किसी तरह के सेक्सुअल हरासमेंट जो कि जेंडर आधारित हो सकता है या भेदभाव को एड्रेस करती है। आज हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर तनुजा जुड़ी हैं। डॉक्टर तनुजा जामिया की इंटरनल कमेटी की मेंबर और चेयरपर्सन रह चुकी हैं। आइए हम आज उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, उनके अनुभवों के बारे में सुनते हैं तथा ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि एक प्रोफेसर होने के साथ साथ इसके अलावा और कौन से कामों में वो इंटरेस्ट रखती हैं और उनका क्या पर्सपेक्टिव रहा है अपने काम से जुड़े अनुभवों को लेकर, वो हमारे साथ आज शेयर करेंगी। सबसे पहले थैंक यू सो मच डॉक्टर तनुजा फॉर टेकिंग आउट टाइम. आई नो you've been very busy lately. So on behalf of Radio Jamia and also of Kriya, I would like to thank you. I have to introduce you. So your current designation would be? I am a professor at Center of Interdisciplinary Research in Basic Sciences. Additionally, I am director, Center for the Study of Social Inclusion. So this is all about inclusivity for gender, for minorities, for disabled, for transgenders. I'm basically a microbiologist and a cancer drug specialist. Worked for Government of India women-centric programs for women in STEM, that is science, technology, engineering and maths. At present, I am the director of the Center for Study of Social Inclusion. Wonderful. So that means आपके साथ हमें 15-20 इंटरव्यूज और करने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा exactly. I'm a humble teacher and Jamia is the place which gives everybody that kind of wings to fly, and people like you are doing more commendable job. You are the ones who are actually taking it across to people. So kudos to you and your team. We are going to talk about ICC today. तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि Internal Complaints Committee, what are some basic guidelines, rules, code of conduct that ICC follows जिससे कि स्टूडेंट्स को सेफ महसूस हो और उनको ऐसा लगे कि हाँ, they have somebody to turn to in case they face any issues or problems in the university. Okay. Thank you so much, Dr. Simran, for having me with you. It is indeed a pleasure to be talking about something which is so close to our hearts, because being women, being in the system that we are in, this initiative of Government of India, that is the sexual harassment of women at workplace, with the main objective was to create a safe and secure workplace for women. So I would say under the POSH Act of Sexual Harassment at Women at Workplace, this act made provisions that there should be an internal complaints committee at all workplaces. At present, this ICC has been renamed as only IC, which is the internal committee. The ICC is actually a body in every institution that looks after the mental, the physical, I would say trauma, if at all, for any of the women who are facing it, would be looking into the matter and talking about their well-being. IC, so I should call it IC now. जामिया में IC ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए हैं कि जो भी स्टूडेंट्स या स्टाफ विक्टिमाइज्ड होते हैं या हैरेस्ड फील करते हैं, that they feel comfortable to approach IC. तो are there any steps that have been taken
so that more and more people can come forward, क्योंकि यूजुअली लोग बोलते नहीं हैं, इस बारे में बात करते नहीं हैं, तो वो सही बात है। लेवल आप कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स में? जब मैंने ज्वाइन किया तो आईसी की सबसे पहले हमारी टीम की ये थी कि हम एक दो तरीके से इसे करें। पहला था कि हम कैंपस अक्रॉस इसकी अवेयरनेस जनरेट करें, बिकॉज अगर पता ही नहीं है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन आईसी, तो वो कैसे होगा। तो हम लोगों ने हर जगह जहां इंपॉर्टेंट जगह थी वहां पे इस पूरी कमेटी की, इसके कॉन्टैक्ट मेल्स के साथ हमने कई इंपॉर्टेंट गेट्स पर, डिपार्टमेंट्स और लाइब्रेरी के पास इसकी डिस्प्ले की। दूसरा काम जो हम लोगों ने किया, डीएसडब्ल्यू ऑफिस के सामने हम लोगों ने बिलबोर्ड्स पर इसके बारे में डिस्प्लेस की, जिससे कि लोगों को पता चले व्हाट कम्स अंडर दी सेक्सुअल ऑफेंस। बिकॉज अक्सर लोग सोचते हैं, बच्चों में भी ये हो सकता है या हम में भी, कि ये ऑफेंस होता क्या है। इनफैक्ट यहाँ तक कहा गया है कि आप किसी को थोड़ी देर तक बिना पलक झपकाए अगर आप स्टेयर कर रहे होते हैं और अगला अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, तो वो भी एक ऑफेंस है। उसमें आप निहार रहे हो सकते हैं, लेकिन आप अगर उस अगले को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं वर्क प्लेस में, तो ये भी एक हरासमेंट है। फिजिकल टच है, बातों से अगर आप किसी को चोट पहुंचा रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं क्विड प्रो क्यो हरासमेंट, यानी persons in trades or jobs, when they are on a position where they can, with their authority like a supervisor, senior colleague या कोई आपके faculty के head, जब आप पर अपनी उस पोजीशन के हिसाब से आपसे कोई फेवर्स चाहें, वो एक फिजिकल फेवर हो सकता है, मानसिक तनाव अगले जेंडर को ला सकता है, तो इसे हम कहते हैं क्विड प्रो को हरासमेंट। और हरासमेंट में हम ये भी लाते हैं कि आपने टच तो गलत किया, वो तो बहुत एक्सट्रीम फॉर्म हो गई। आप कोई ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं, वहां आप हर रोज अपनी बाइक लाकर खड़ा करते हैं, उसके तरफ से गुजरते हैं और आप उसे अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, तो ये सारी चीजें हरासमेंट। आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। So, डॉक्टर तनुजा, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने अभी कहा कि हो सकता है मेरा कोई सुपीरियर है, मेरा कोई सुपरवाइजर है, and I as a student might feel threatened, but how do you make sure that despite that I approach IC, because there are so many nuances in that relationship na, of an authority figure and a student. So how do you make sure that the student feels comfortable and knows that I will be heard and approaches IC? अच्छा, अब इसमें दो पहलू है। पहला हो गया, हाउ डज अ एग्रीव्ड, यानी हम जिसे कंप्लेनेंट कहते हैं, और जिसके अगेंस्ट करते हैं वो रेस्पोंडेंट है। तो कंप्लेनेंट को ये है कि जो आपके साथ हुआ है उसके रिपोर्ट आप ईमेल से दे सकते हैं। कई जगह आपके यहाँ की ग्रीवांस कमेटी है, उसमें आप एक बात बताएं और ग्रीवांस कमेटी आईसीसी को देती है, नहीं तो आप एक चिट्ठी लिखकर आईसीसी को दे सकते हैं। और अगर आप इस स्टेट में नहीं कि इतनी ट्रॉमा हुई कि आपके फिजिकल कंडीशन नहीं आप आ सकते हैं, तो आपके बहुत ही परिचित कोई हो आपके साथ जा सकता है और आईसीसी के ऑफिस में दे सकता है। अब इसमें बात होती है कि आपके सुपीरियर हैं या आपके कोई ऐसे हैं जो आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो मैं बता दूं कि आईसीसी के तहत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना हमें कंप्लेनेंट के बारे में बतानी है रेस्पोंडेंट को, ना रेस्पोंडेंट को कंप्लेनेंट का नाम बताना है, जब तक ये प्रक्रिया चल रही है। फिर आप जिस दिन इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं, यानी मैंने एक कंप्लेन ले ली और अब मैं इन्वेस्टिगेशन जब शुरू करूंगी, तो मैं एक फॉर्मल आईसीसी की तरफ से ये चिट्ठी देती हूँ कि रेस्पोंडेंट, देयर हैज बीन अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू एंड देयर आर सो मेनी विटनेसेस। विटनेसेस थोड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है जो कंप्लेनेंट को बताना होता है। तो हमारी बाध्यता होती है कि 3 महीने के अंदर हम इस पूरी प्रक्रिया को खत्म करें। हम इसे इंडेफिनिट नहीं ले जा सकते, हमें 3 मंथ्स के अंदर इंक्वायरी करके रिपोर्ट देकर इसे अथॉरिटी को सबमिट करनी है। ये सील्ड एनवलप में जाती है सारी रिपोर्ट्स। रेस्पोंडेंट और कंप्लेनेंट को अलग अलग बुलाया जाता है, विटनेसेस की कोई एक डेट दी जाती है और इसे थोड़ी सिटिंग्स में बातों की गहराइयों को, नुआंसेस को समझा जाता है, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू जस्ट सी अ कंप्लेन। इट वर्क्स लाइक अ सिविल कोर्ट एक्चुअली। इन अ क्लोज्ड डोर द कंप्लेनेंट इज कॉल्ड, इश्यूज आर अंडरस्टूड, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद हम वहीं पर उसे दोबारा कहते हैं कि अपने हैंड राइटिंग में इसे आप लिख लें। अगर वो सक्षम नहीं है हैंड राइटिंग में लिखने का, तो वो बोले, डिक्टेट करे, उसके साथ ही हम किसी
आईसीसी की कमेटी को बैठा सकते हैं, वो लिखेंगे, सिग्नेचर उनकी होनी जरूरी है, और उसे पूरी तरह से हम पहले एश्योर करवाते हैं कि मानसिक रूप से वो रिलैक्स्ड हो, ये उसे कॉन्फिडेंस में हो कि हमने उसकी बात को अनबायस होकर सुनना है, पहली बात। और दूसरा, हमारी टीम कहीं भी इसे गॉसिप के रूप में नहीं यूज करेगी। तो मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर्स एक शपथ में रहते हैं, आईसीसी भी उसी शपथ से काम करती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन the respondent is made aware that certain allegations have been made against you and you have to give a clarification। और विटनेस को करने के बाद आईसीसी की टीम मेंबर्स बैठकर फिर एक ड्राफ्ट करते हैं और उसके बाद रिकमेंडेशंस होती हैं। Right. Thank you so much for explaining it in such great detail and depth to us. अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि बहुत बारी देखा गया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस होते हैं वो किसी भी व्यक्ति की जेंडर आइडेंटिटी या सेक्सुअलिटी से जुड़े हुए होते हैं। तो आईसीसी इन केसेस के साथ कैसे डील करता है? हाउ डज आईसी एंश्योर कि इन केसेस को जरूरी सेंसिटिविटी के साथ डील किया जाए वेयर सेक्सुअलिटी एंड जेंडर इज कंसर्न्ड? आईसीसी की जो कमिटी है उसकी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है वो एक सीनियर फीमेल होती हैं। इसमें मिनिमम 2 और मेंबर होती हैं जो वहीं की एम्प्लॉयज होनी चाहिए। इसके अलावा हम इंश्योर करते हैं 2/3 महिलाएं और कुछ पुरुष भी होते हैं। सेंसिटिविटी का जहां तक ख्याल है तो मुझे लगता है क्योंकि हम महिलाएं ही महिलाओं के इशू को समझ रहे होते हैं तो पहले हम कंप्लेनेंट से ही उसके इश्यूज को समझते हैं, तब हम रेस्पोंडेंट जो एक अलग कैटेगरी है, मोस्टली मेल ही होते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये गाइडलाइंस है, विशाखा गाइडलाइंस, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट की 1997 में थी और फेमस केस हुआ था बाबरी देवी का, और उसी के बाद ये बना। ये महिलाओं से ही रिलेटेड है, महिलाएं ही इनकी बातें सुन रही हैं। तो मुझे लगता है कि गर्ल्स और विमेन वुड बी फीलिंग कंफर्टेबल इन पर्सन इन द कंपनी ऑफ सीनियर फीमेल कलीग्स। और हम जो बातें भी करते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें ये खासा ख्याल रखा जाता है कि ऐसी कोई बात और डिटेल्स न पूछी जाए जो उस व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है। आपकी नरेशन बिल्कुल पेशेंटली सुना जाएगा और उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि अरे ये तो तुम रात में निकली थी तो तुम्हारे साथ होना ही था, तुम ऐसे अकेले गई थी तो तुम्हारे साथ होना ही था। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि हम आपकी बातों को सेंसिटिव होकर सुने, आपके अंदर की परेशानियों को समझे, उसकी काउंसलिंग भी करना हमारा काम होता है, क्योंकि वो महिला या लड़की थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड रहती तो है। तो पहला काम होता है कि हम उसे एश्योर करें कि इस बात से उसे कहीं भी कोई परेशानी अगर है तो वो और भी हमसे शेयर कर सकती हैं, और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि उसकी ये बातें बाहर नहीं जाएंगी। राइट, ओके। सो डॉक्टर तनुजा, क्योंकि हम लोग लड़कियों की बात कर रहे हैं और महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो यूजीसी गाइडलाइंस को अक्सर इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया गया है कि ये जेंडर को सिर्फ आदमी और औरत तक ही सीमित रखते हैं। अगर हम बाइनरी समझ की बात करें तो इसकी इंक्लूसिविटी के क्या क्या एफर्ट्स आईसीसी करता है कि एक बाइनरी एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखा जाए कि वी गो बियॉन्ड मेल फीमेल? अभी जो हमारी गैजेट है 2013 के गाइडलाइंस है, उस वक्त जो ये कम्युनिटी थी उस पर इतनी सेंसिटिविटी या ध्यान न रहा हो तो उसकी मेंशन इस गैजेट में नहीं है। और जो पॉश एक्ट के तहत आईसीसी बना है इसमें बातों का संशोधन हो सकता है। What are your personal thoughts and opinions about it? What do you think? I think harassment for females, of course, was an issue which was taken care of by the government. And then you're talking about these binary issues. They are also becoming more alarming. And I think they are also coming out in open. One must give it a thought. Discuss it like the Supreme Court. It has legalized many things related to the binary issues. Similar efforts can be done to give them that kind of safeguarding and not under the broader term of grievance. So all other matters which are not related to female gender are put into the grievance redressal. Okay. And as far as you said, my personal comments, yes, it should be discussed, brought into the notice, and maybe in future, like the government has done, it may look into it. तो डॉक्टर तुंजा, माय लास्ट क्वेश्चन, जैसे आईसीसी विक्टिम्स के केसेस रिजॉल्व हो जाते हैं उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ अ फॉलो अप सपोर्ट इज प्रोवाइडेड, खासकर साइकोलॉजिकल या इमोशनल? बिकॉज आपने जैसे अभी कहा इट्स समथिंग व्हिच रियली डिस्टर्ब्स द पर्सन। तो चलिए, मैंने रिपोर्ट कर भी दिया, केस रिजॉल्व भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी इट विल टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा। There is nothing
As such, again, I go back to the Gazette. It doesn't mention that the ICC has to follow up. अब ये होना चाहिए, जो एक्शन हमने रिकमेंड की है, नॉर्मली वो बाइंडिंग होती है और अथॉरिटीज उसे लेते हैं और एग्रीव्ड पार्टी देखते हैं कि हमें न्याय मिला कि नहीं मिला। अगर उन्हें नहीं लगता है तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं। कई बार हमें असिस्ट करना चाहिए कि हम उसे पुलिस में या FIR में भी मदद करें। मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई अगर आपका फैकल्टी ने ऐसा किया तो आप जो रिकमेंडेशंस दे रहे हैं फैकल्टी के सस्पेंशन का, ट्रांसफर का, रोक का, ये सारे पावर्स ICC को है, या किसी के मानसिक तनाव के कारण उसे मेडिकल बिल्स उसके हुए और वो ट्रॉमा में चली गई, तो ये ICC कर सकती है कि द एक्सपेंसेस दैट वर देयर विल हैव टू बी मेट बाय द रेस्पोंडेंट। इसके बाद हमारी ड्यूटीज खत्म हो जाती है। लेकिन मुझे पर्सनली अगर आप पूछें तो कई बार जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स हम करते हैं। उसमें हम बॉयज को, जैसे मैंने खुद भी इंजीनियरिंग के उसमें जो ओरिएंटेशन था उसमें हमने टॉक दिया, तो कई सेल्स और डिपार्टमेंट्स आपको बुलाते हैं कि शुरुआती तौर पर आप सेंसिटाइज करें कि क्या आता है नहीं आता है। लेकिन जो एक्चुअल सिंगल एग्रीव्ड है, आप उसे काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स या बहुत सारे और आपके जो काउंसलिंग सेल है वहां आप रिकमेंड कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से डॉक्टर तनुजा, दिस इज ऑल्सो यूथ सपोर्ट, बिकॉज एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां यू आर मेड टू फील अशेम्ड even if you have been wronged, I have a committee which is there to support me and to guide me and to tell me what to do. Because agar maine apna man bhi bana liya hai that I have to report this case, more than half of the times I do not know what to do, where to go, who to approach. I think from that point of view, IC is doing an amazing job. When you have a team which is committed, and team at Jamia truly committed in carrying out that kind of work, and people like you are doing great because you are trying to bring that to the students, because billboards and only sensitization programs aren't enough. I must congratulate you for taking this effort and to propagate about this ICC. You and your entire team, the Kriya team, are doing a great job for propagating issues that are so relevant to our younger generation. Our students really need to know where to go, how to go about it. And for that, your efforts in bringing IC of Jamia into everybody's mind is truly commendable. I congratulate Kriya and the entire team for that. Wonderful speaking to you, Dr. Tanuja. थैंक यू सो मच सभी सुनने वालों को आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आई एम श्योर ये बहुत यूजफुल लगा होगा, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। हम आपके साथ ऐसे ही आगे भी जुड़ते रहेंगे और कोशिश करेंगे फिर से हम जेंडर, एजुकेशन या टेक्नोलॉजी से जुड़े अन्य मुद्दों को, पहलुओं को लेकर आपके साथ में आए। आप सुन रहे हैं कहीं अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM पर। अगर आप हमारे साथ फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें kriya@kriyaworld.org पर ईमेल कर सकते हैं। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलते हैं और जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय। कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों